ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पोस्टुलेट थर्ड। देखिए पोस्टुलेट थर्ड यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात हो रही है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोस्टुलेट थर्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब पोस्टुलेट थर्ड क्या बोलता है? जैसे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है कि भाई ट्रू कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स वाली बात यहाँ भी सेम है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट टू कंट्रास्टिंग एलील responsible for contrasting traits get separated from each other at the time of gamete formation by F1 hybrid. ठीक, separated from each other at the time of gamete formation by F1 hybrid, and due to their recombination, 4 combinations can be obtained in equal frequency. 4 combinations can obtain in equal frequency. This is postulate third. This is just like a law of segregation. Law of segregation क्या बोलता है कि whenever we are making a cross between a contrasting pair of character, whenever we are making a cross between a यानी monohybrid, यानी postulate जो आपका थर्ड है that is also based on monohybrid cross. ये monohybrid cross पर based है, ठीक है ना? लाइक दैट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है कि व्हेनेवर वी आर मेकिंग अ क्रॉस बिटवीन अ कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर देन all these character will appear in F1 generation, but out of these two one character express themselves, other remain hidden. One character express themselves and other remain hidden. क्लियर ना? तो जो एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट, जो हिडन रहता है वो रेसेसिव। ठीक है, ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस तक था। But whenever we are making selfing between them, जैसे selfing की हमने, when we are making selfing between them, then all these character segregate themselves, अलग अलग हो जाते हैं, separate हो जाते हैं। That is law of segregation। यही law आपका postulate थर्ड है। क्लियर? लास्ट postulates की बात करूं मैं। लास्ट postulates को ले लें कौन? postulate 4। ये लो भी postulate 4। On the basis of postulate 4, law of independent assortment came into existence. Law of independent assortment came into existence. समझेंगे? Law of independent assortment क्या था? Law of independent assortment was based on, it's based on dihybrid cross. Law of independent assortment based on dihybrid cross पर based है, जबकि आपके law of segregation जो है that is based on monohybrid cross. क्लियर ना जी? तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेस्ड ऑन डायहाइब्रिड क्रॉस पहली बात आगे पढ़ाएंगे हम। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट थोड़ा डेफिनेशन यहां देख लेते हैं सो दैट यू कैन रिलेट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद पोस्टुलेट 4। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेइंग लाइक दिस कि व्हेनेवर वी आर मेकिंग अ क्रॉस बिटवीन टू contrasting pair of character, whenever we are making a cross between two contrasting pair of character, then all these character independently assert themselves. This is law of independent assortment based on dihybrid cross. तो ये जो क्रॉस इंडिपेंडेंट assortment it came from postulate 4। हम उसकी बात करते हैं। what is postulate 4? तो postulate 4 को देखेंगे हम, डेफिनेशन वाली बात कर लें। तो postulate 4 saying like this postulate was made on the basis of dihybrid cross। पहली चीज कि this postulate was made on the basis of dihybrid cross, हमें ध्यान रखना है। According to this postulate, inheritance of one character is independent to the inheritance of another character. Independence of one character is आपके inheritance of one character is independent from the inheritance of another character. So on the basis of this postulate, Mendel proposed the law of independent assortment as you know this. Getting on beta. Clear है? कोई confusion में? Done? ठीक? Once again तो read नहीं है। This postulate was based on dihybrid cross. पहली चीज, he postulated that inheritance of one character is independent from the inheritance of another character, or on the basis of this law of independent assortment came into existence. Done or not? बिल्कुल बात क्लियर है कि नहीं? हम इसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है जी? यानी हमारी बात हुई अभी 4 postulates की। ठीक? On the basis of these 4 postulates, 3 laws came into existence in a और एक लॉ देखो क्या है। These 3 laws came into existence। तो मेंडल भाई साहब जो थे उन्होंने दिए थे आपके फर्स्ट लॉ दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड इज
law of segregation, this is also called purity of gametes, you can see here, ठीक। and third जो रहा third law, this is called law of independent assortment, that is law of independent assortment। as I told you, all these three laws, they were not laws of Mendel, they are the law of their rediscoverer। तो तीनों rediscoverer, Hugo de Vries from Holland, Correns from Germany and Sermack from Austria, ये हमें याद रखना है। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत? ठीक। इनको अब देखिए, ये जो लॉस तो हमें पढ़ने ही है। बिफोर स्टडिंग दिस लॉ कुछ अलग टर्मिनोलॉजी पढ़नी है, छोटी छोटी से कुछ लॉ, पहले उनको पढ़ते हैं, फिर हम लॉ की बात करते हैं। बात क्लियर ना, हम इनकी भी बात करेंगे, ठीक। अभी हमें कुछ और लॉस पढ़ने हैं, हम उसके बाद इसे पढ़ेंगे, क्लियर ना। यानी हमें जो है law of dominance, law of segregation, law of independent assortment, we will discuss about all these things। before this कुछ बेसिक चीजें और हैं, कुछ छोटे छोटे से लॉज हैं। first of all there is a need to understand that, if after that some concept will clear, then we will start that, okay। so now on the basis of this what we are going to discuss, first term is there, is that पहली चीज बात कर रहे हैं हम, first things is cross, what is that, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है। किसकी? मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड। इसको समझेंगे, व्हाट इज दैट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मींस टू से व्हेन वी आर कंसीडरिंग वन कैरेक्टर, ओनली एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक। ओनली वन कैरेक्टर टेकन इनटू कंसीडरेशन, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कैसे बेटा? मैंने कहा कैपिटल टी टॉल का क्रॉस करवाया डॉट से। कैरेक्टर क्या है? हाइट। These are the trait, only one character taken into consideration, height का character लिया, that is monohybrid cross। when two character taken into consideration, मैंने कहा वो tall भी है भाई, प्लांट tall है और उसमें येलो कलर के सीड्स लगी हैं, या बात है येलो कलर के सीड्स है या आपके ग्रीन कलर के सीड्स है, हमने दो कैरेक्टर ले लिए। when one character taken into consideration, monohybrid cross, two character taken into consideration, dihybrid cross, getting on out, so monohybrid, dihybrid, हम ये ध्यान रखना है, क्लियर ना जी। अब आप समझे तो monohybrid cross and dihybrid cross like the trihybrid cross, when three character taken into consideration, when three characters taken into consideration, that is called trihybrid cross। क्या बोला उसमें? ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, मैंने कहा वो टॉल भी है, येलो कलर भी है और उसमें पर्पल कलर के फ्लावर है और या व्हाइट कलर के फ्लावर है। अब बताओ थ्री कैरेक्टर्स हुए कि नहीं? when three characters taken into consideration, trihybrid cross। so what is monohybrid, dihybrid and trihybrid? monohybrid cross when single character taken into consideration, एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, मोनोहाइब्रिड। मैंने कहा टॉल और ड्वार्फ की बात हो रही है, हाइट का कैरेक्टर एक हुआ कि नहीं? when two character taken into consideration, जैसे कि मेंडल ने लिया था येलो राउंडेड, ग्रीन रिंकल्ड, दो कैरेक्टर लिए उसने, एक लिया येलो यानी कलर और दूसरा लिया राउंडेड यानी शेप, दो कैरेक्टर लिए, डाइहाइब्रिड क्रॉस। when three character taken into consideration, आपने येलो, राउंडेड और टॉल, तीन कैरेक्टर ले ली, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, टेट्राहाइब्रिड, पेंटाहाइब्रिड, एनी क्रॉस यू कैन मेक। क्लियर है कि नहीं? ये दी जाता सब बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो बात हुई हमारी मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड एंड ट्राइहाइब्रिड। लाइक दैट इनके हम रेशियो की थोड़ी सी बात करेंगे कि इन किसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, देखें अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें, बिल्कुल बेसिक्स, ठीक। देखें इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। तो इन केसेस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या कहता है? whenever we are making a cross between a contrasting pair of character, ठीक। when we are making a cross between a contrasting pair of character, एक कैरेक्टर के बीच बात हो तो मोनोहाइब्रिड। अब मोनोहाइब्रिड का अगर मैं देखूं बेटा, इसका गैमेट्स तो सिमिलर है तो कैपिटल टी आ गया, इसके भी दोनों सिमिलर है तो स्मॉल टी आ गया, और इनका क्रॉस करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। दिस इज फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट फाइलियल जनरेशन F1, दिस इज फर्स्ट जनरेशन। कैपिटल टी स्मॉल टी, एक तो बोलता था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस वगैरह कि वन कैरेक्टर शो देमसेल्फ, अदर रिमेन हिडन। अगर ये टॉल आया तो कैपिटल टी ने शो किया और स्मॉल टी हिडन बना, ठीक है बात। इसी के हम सेल्फिंग करवा दें, कैपिटल टी स्मॉल टी तो क्या आएगा?
क्रॉस क्या बनेंगे इनके, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी, इज इट नॉट? अब देखो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ये देखो ये होमोजाइगस टॉल, ये हेटेरोजाइगस टॉल और ये होमोजाइगस डॉर्फ। अब बताओ हाउ मेनी टॉल्स आर देयर, हाउ मेनी टॉल्स आर देयर? ये होमोजाइगस टॉल और हेटेरोजाइगस टॉल, तो 1 और 2 3, भाई 3 टॉल्स आर देयर, 1 and 2 3, तो 3 टॉल्स आर देयर। तो आपने क्या कहा कि व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो, 3 tall and 1 dwarf. What is phenotypic ratio in monohybrid cross? What is phenotypic ratio in this monohybrid cross? 3:1. And what is a genotypic ratio? Phenotype we discuss. देखो ये प्योर होमोजाइगस है, ये इम्प्योर टॉल है यानी हेटेरोजाइगस है, और ये डॉर्फ यानी आपका होमोजाइगस रिसेसिव है। होमोजाइगस डोमिनेंट, homozygous recessive and 2 heterozygous. So 1:2:1. So in cases of monohybrid cross, the phenotypic ratio is in monohybrid cross here, the monohybrid cross phenotypic ratio is 3:1 and genotypic ratio is 1:2:1. Getting or not? हम इसको ध्यान रखना है, 3:1 and 1:2:1. Clear or not? बात समझ आई? तो ये हुआ आपका मोनोहाइब्रिड। बस है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हेन वी आर मेकिंग अ क्रॉस बिटवीन अ कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर, बिटवीन अ कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर, दैट इज मोनोहाइब्रिड। देखिए अब इन मोनोहाइब्रिड व्हाट इज फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, व्हाट इज जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। तो मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्लियर है। आप देखो मोनोहाइब्रिड क्लियर है, डायहाइब्रिड समझेंगे। इन केसेस ऑफ डायहाइब्रिड, in dihybrid when we are making a cross between two contrasting pair of character, two contrasting pair of character जैसे मेंडल ने लिया था। मेंडल ने क्या किया था, एक नॉर्मल सा चार्ट आप यहाँ भी देखेंगे, पुनेट स्क्वायर चार्ट में देखेंगे आगे। तो इन पुनेट स्क्वायर चार्ट यू कैन सी येलो राउंडेड क्रॉस विद ग्रीन, आपके येलो राउंडेड ग्रीन रिंकल्ड। क्लियर बेटा, ये दोनों सेम है तो यहां पर आ गए इनके गैमेट्स कैपिटल वाई कैपिटल आर, यहाँ आया स्मॉल वाई स्मॉल आर, गड़ेगा ना। और इनका F1 आया कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसकी करवा दी सेल्फिंग। यानी सेल्फिंग मीन्स टू से हमारी शादी हमसे नहीं करवा देनी है। सेल्फिंग मीन्स टू से ये नहीं आप सेल्फी हमने आपकी शादी आपसे ही करवा दी, नहीं। सेल्फी मीन्स टू से हमारे जैसे से ही क्रॉस करवाना, हमारे जैसे मतलब नहीं मेल के मेल से शादी करवानी, यार ऐसा नहीं सोचना है। सेल्फी मीन्स टू से ये हेटेरोजाइगस है, कैपिटल वाई देखो ये हेटेरो, इस सेम जीनोटाइप से आपने क्रॉस करवाई, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। व्हेन वी आर मेकिंग सेल्फिंग बिटवीन देम, तो कंडीशंस कैसी बनेगी, यू कैन सी इन द पुनेट स्क्वायर चार्ट। कैसे कंडीशन आएगी, ऑल दीज कैरेक्टर्स जो फिनोटाइपिक रेशियो इसका आएगा that is 9:3:3:1, 9:3:3:1. This is the phenotypic ratio, or what will be the genotypic ratio? 1:2:1, 2:4:2 and 1:2:1. Okay, this is their genotypic ratio. So phenotypic ratio in a dihybrid cross 9:3:3:1, and what is the genotypic ratio in this cross 1:1, 2:4:2, 1:1. ठीक, गड़ेगा ना? जरा देखें इस चीज को, मैं इसको रब कर रहा हूं थोड़ा, अभी बता रहा हूं ये रेशियो आते कैसे हैं। जेनेटिक्स बहुत शानदार चीज है, मजा आ जाता है पढ़ने पढ़ाने में। ठीक, जेनेटिक्स में क्या है, आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। जैसे मैंने कहा पूरी जेनेटिक्स हम आपको सिखाएंगे, सिर्फ रेशियो क्या पढ़ाऊंगा 3:1, 1:1, बस इसी से पूरी जेनेटिक्स सीख जाएंगे। कंप्लीट जेनेटिक्स वी विल लर्न बाय दिस फुल। ठीक, मैंने कहा डायहाइब्रिड रेशियो क्या है आपका 9:3:3:1। ये आया कि नहीं, आया कैसे, डायहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो आया। डायहाइब्रिड मींस टू हाइब्रिड, तो व्हेन टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो दो मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो क्या है 3:1। ये मोनोहाइब्रिड है, तो दो मोनोहाइब्रिड का क्रॉस करवा दिया आपने 3:1 मल्टीपल विद 3:1।
इससे बनेगा डाई हाइब्रिड। देखिए 3 का मल्टीपल करिए यहाँ पर, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3 एंड 1 1 जा 1, 9:3:3:1। अगर इसका ट्राई हाइब्रिड लेना होता, if there is a need of ट्राई हाइब्रिड, no problem, डाई हाइब्रिड already is there, then डाई हाइब्रिड should make cross with monohybrid phenotype. अब once again you will make a cross, this is tri-hybrid phenotypic ratio, so no need to remember everything. It everything very easy. Hey, this is tri-hybrid आ जाएगा. If like that आपको बनाना हो क्या? Their genotypic ratios 1:1, 2:4, 1:1 कैसे आया? Hey, genotypic ratio कैसे आया? So genotypic ratio इनका आया था 1:2, 1:1, 2:4:2 and 1:1. Yeah. How it came? Dihybrid, मतलब from 2 monohybrid. So 1:1 cross with 1:2:1. Monohybrid genotypic ratio, monohybrid genotypic ratio. So when we will make cross, 1 का यहाँ 1 का क्रॉस करोगे तो 1 का क्रॉस करेंगे क्या आएगा? 1:2:1. इज इट नॉट? ठीक, तो 1:2:1, 2 का करेंगे डबल हो जाएगा 2:4:2, 1 का करेंगे तो 1:2:1. दिस इज डाई हाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो. इसी का अगर मुझे ट्राई हाइब्रिड करना होता तो इसी में क्या क्रॉस कर देता ना, 1:1 का ट्राई हाइब्रिड आ जाएगा. क्लियर और नॉट? बस में दिस इज मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस, लाइक दैट ट्राई हाइब्रिड क्रॉस. सो व्हेन वन character taken into consideration, monohybrid. Hey, 2 character taken into consideration, dihybrid, like that trihybrid. Clear? Monohybrid phenotypic ratio 3:1, genotypic ratio 1:1. In cases of dihybrid phenotypic ratio 9:3:1, genotypic ratio 1:1, 2:4:2, 1:1. Clear है कि नहीं? डन. यदि चीज ध्यान रखेंगे. गेटिंग एनर्जी ऑप्शन. तो अपने ये बात हो गई अभी क्या, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड एंड ट्राईहाइब्रिड की. ओके, नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी.